Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors, days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 21 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, एज यूजुअल हम करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं फॉर रिविजन पर्सपेक्टिव। जो बच्चे नए हैं हमारे साथ, उनके लिए सजेशंस, नोट्स बना के चलिएगा। नोट्स बनाने से आप ही की रिवीजन होगी। एग्जाम से पहले आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है रिवीजन का। तो चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कौस्तुभ चैटर्जी की। कौस्तुभ चैटर्जी वो इंडिया के 78th ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये याद रखेंगे। 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन है? कौस्तुभ चैटर्जी, ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप को जीता था टू बिकम द 78th ग्रैंड मास्टर। ठीक, चलिए, मतलब इन्होंने जीता, मतलब इस इवेंट के दौरान इनको ग्रैंड मास्टर बनाया गया था, इन्होंने जीता नहीं था इसको। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं फाइड वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में। कोनेरू हम्पी, इन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता है। ठीक है, कौन सा मेडल रहा? ये सिल्वर मेडल रहा। कहाँ जीता? वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियनशिप के दौरान इन्होंने इंडिया के लिए पहला मेडल जीता और वो था सिल्वर मेडल। ठीक, अगर मैं ये बात करूं कहाँ पे हुई थी वर्ल्ड ब्लिट्स एंड चेस चैंपियनशिप, ये आपकी अलमाटी कजाकिस्तान में हुई। फिर आ जाते हैं, वो कौन सी कंट्री बनी जिन्होंने अभी अपनी करेंसी कूना को छोड़ के यूरो को अपना लिया है? वो कौन सी करेंसी है? वो है क्रोशिया। इन्होंने शेंगेन जोन को ज्वाइन कर लिया है और यूरो को अपनी करेंसी अपना लिया है। नेक्स्ट आ जाता है गोवा के चीफ मिनिस्टर। इन्होंने लॉन्च किया पर्पल फेस्ट लोगो। ये किस पे था? बेसिकली पर्पल फेस्ट ये आपके इंक्लूजन के ऊपर है। फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया टॉफी प्रोग्राम को। हरियाणा का ये हो जाता है चारा बिजाई योजना। इन्हीं का है आपका ई अधिगम की हम यहाँ पे एप्लीकेशंस टैबलेट्स प्रोवाइड करेंगे टू स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स। और यहाँ पे है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, ये भी आपका हरियाणा गवर्नमेंट का। वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल किया गया था? ये उज्जैन में। कोचिन शिपयार्ड इन्होंने पार्टनर किया आईआईटी मद्रास के साथ टू सपोर्ट द मैरीटाइम स्टार्टअप्स। आईआईटी हैदराबाद इन्होंने डेवलप किया अफोर्डेबल फाइबर री इन्फोर्स्ड कॉन्क्रीट को।
पीएम मोदी ने अनवेल किया लोगो थीम वेबसाइट ऑफ द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, और यहाँ पे रहेगा वसुदेव कुटुंबकम थीम यहाँ पे। फिर अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को अंडर अटल न्यू इंडिया चैलेंज प्रोग्राम, ANIC प्रोग्राम के अंडर ये अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया वीमेन सेंट्रिक चैलेंजेस को। फिर रिलायंस ने सेटअप किया, रिलायंस इज सेट टू एक्वायर मेट्रो कैश एंड कैरी इंडिया इन 4060 करोड़ रुपीस डील। कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इसको नोटिफाई किया गया है एज द 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करेंगे कि 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु की कौन सी बनी, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सार्क चार्टर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 8 दिसंबर को। फिर आ जाता है कि टाइम मैगजीन 2022 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर का टाइटल किसको दिया गया था, और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर टाइम मैगजीन की कवर बुक पे भी इनकी फोटो है, ये है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, और ये क्या है, ये है प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। ठीक, फिर एक और चीज़ याद रखेंगे, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इससे पहले जब ये प्रेसिडेंट बने, इससे पहले ये क्या थे, यहाँ पर ये एक आपके क्राउड वर्क करते थे, बेसिकली आप इनको कह सकते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन थे ये, ठीक है। फिर बाद में ये प्रेसिडेंट बन गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2022 की। अब ये मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव बेसिकली क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है अभी फरवरी मंथ में 2023 में लखनऊ में होगा ये, और इसका मेन एम क्या है कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करें और हम यूपी में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएँ। तो ऐसे ही मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव क्या है कि हम ओडिशा के प्रोडक्ट्स को पॉपुलर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ओडिशा एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तौर पे सामने आए और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे कि बेसिकली बाहर के लोग भी आके इन्वेस्ट करें और हमारी जो आउटपुट है वो बढ़े। भुवनेश्वर में हुई थी, 30 से लेकर 4 नवंबर के बीच में हुई थी मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव। फिर एक चीज़ और याद रखेंगे, ओडिशा में ही अगर आपका भी देखें तो क्या चल रहा है, FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चल रहा है। ये आपका राउरकेला और भुवनेश्वर में हो रहा है, और राउरकेला में ही आपका इंडिया का बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहेगा। फिर आ जाता है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अभी प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट कर लिया है। अगर याद हो कुछ टाइम पहले तो ऋषभ पंत को भी इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। ऋषभ पंत का भी टीम से बाहर आई है क्योंकि इनका एक्सीडेंट हो गया था। एंड याद रखेंगे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ही स्टेट ब्रांड एम्बेसडर भी किनको अपॉइंट किया था, अक्षय कुमार को, और अब प्रसून जोशी को उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। नेक्स्ट पे आते हैं सिडनी मैक्लॉगलिन और आर्मंड डुप्लेंटिस, इनको वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से घोषित करा गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद। ये कहाँ पर हुई, राजस्थान में इस एक्सरसाइज को स्टार्ट किया गया। ऑस्ट्रा हिंद ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई थी, ठीक, और कहाँ पर हुई, राजस्थान में। तो दोस्तों ये तो थे हमारे रिवीजन के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द डे, जो आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे, प्रिपरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और नोट्स ज़रूर बना के चलना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं IPA एंड RIS। ये IPA क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। IPA है आपका इंडियन पोर्ट्स एंड एसोसिएशन IPA, एंड RIS जो कि है रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। इन दोनों के बीच, इन दोनों के द्वारा मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया ताकि एक सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी को सेटअप किया जा सके। ये जो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन न्यू दिल्ली, ठीक। ये जो आपका प्रपोज प्रोजेक्ट है ना, ये एक बेसिकली ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा। इवन जो बिम्स्टेक नेशंस हैं वहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा, और उस वहाँ पे उन नेशंस में हमें एक्सपोर्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी अंडर दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइक्लोन 1। ये क्या है, एक्सरसाइज साइक्लोन 1। फर्स्ट का मतलब ये फर्स्ट एडिशन रहेगा।
और ये इनॉग्रल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और इजिप्ट के बीच में कराई गई है पहली बार। ठीक है, इनॉग्रल मतलब पहली यहाँ से शुरू हो गई है ये एक्सरसाइज होना। तो याद रखेंगे साइक्लोन 1 ये एक इनॉग्रल एक्सरसाइज है, पहला एडिशन रहेगा। इंडिया और इजिप्ट के बीच ये एक्सरसाइज रहेगी। इस एक्सरसाइज को लास्ट ईयर 2022 जनवरी में कराना था साइक्लोन 1 को, लेकिन जब ये पोस्टपोन कर दी गई थी तो अब ये एक्सरसाइज 14 जनवरी से शुरू हो चुकी है। कहाँ पर? इंडिया में, राजस्थान में। ठीक, जोधपुर राजस्थान में एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। प्लान थी ये पहले होने की जोधपुर में, लेकिन अब ये एक्सरसाइज इस बार कहाँ हो रही है? जैसलमेर में। 2023 में जैसलमेर में एक्सरसाइज हो रही है। 14 दिन की एक्सरसाइज है, 14 जनवरी को शुरू की जा सकी है और एक दूसरी कंट्रीज के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ही इंडिया और इजिप्ट के बीच ये साइक्लोन 1 एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है। और इजिप्ट की अगर मैं पूछूं कैपिटल क्या रहेगी? कायरो यहाँ की कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है IREDA एंड MNRE। IREDA क्या है आपका? इंडियन रेलवे एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, इन्होंने अभी MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। और ये जो MOU था ना, ये बेसिकली क्या है, किस रीजन के लिए, उसके बारे में सेटअप बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ टू सेटअप एन एनुअल परफॉर्मेंस टारगेट फॉर 2022-23। ठीक, यहीं पे अगर हम देखें जो ये MOU साइन किया गया था, प्रदीप कुमार दास जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है IRED के, एंड भूपेंद्र सिंह भल्ला जो कि सेक्रेटरी हैं MNRE के, इन दोनों के बीच ये MOU साइन किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेटअप किया है 3,361 करोड़ रुपीज फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, जो कि एक इंक्रीज है 18% से फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्विच किया बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2024 विद RBI इन कैश न्यूट्रल डील। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कंडक्टिंग किया काफ़ी कन्वर्जन ऑपरेशंस को विद मार्केट पार्टिसिपेंट्स एज वेल एज विद RBI इन ऑर्डर टू स्ट्रीमलाइन देयर लाइबिलिटी प्रोफाइल एंड प्रमोट मार्केट डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटर्ड इनटू अ कन्वर्जन स्विच ट्रांजैक्शंस विद RBI ऑन 17 जनवरी। यहाँ पर अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वापस खरीदे 6.18% के बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2024 वर्थ 22,610 करोड़ रुपीज एट अ प्राइस ऑफ 98.62 and you issued a 8.28% 2032 bonds to the RBI worth 21,025 करोड़ रुपए के एट अ प्राइस ऑफ 106.05। ये जो ट्रांजैक्शन है ये प्रपोज्ड एट द फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राइसेस एट जनवरी 16, 2023। नेक्स्ट आ जाता है LIC के द्वारा भी एक गारंटेड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है जीवन आज़ाद के नाम से। अगर इसी प्लान की अगर हम बात करें, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? LIC के द्वारा। क्या लॉन्च किया गया? एक जीवन आज़ाद प्लान। ये प्लान नंबर 868 रहेगा। ये एक न्यू नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है जो कि डिज़ाइन किया गया है फॉर इंडिविजुअल सेविंग्स एंड लाइफ इंश्योरेंस। ये प्लान ऑफर करता है अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन को ऑफ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स। LIC जीवन आज़ाद इज लिमिटेड पीरियड पेमेंट प्लान जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन द केस ऑफ द अनटाइमली डेथ ऑफ लाइफ एश्योर्ड ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म एंड ऑल्सो एड्रेसेस लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स थ्रू अ लोन फैसिलिटी। द सर्वाइवर विल ऑल्सो get a guaranteed lump sum amount on the maturity date. ठीक, the plan also offers participants the option of receiving death or maturity benefits in installments. Alright, अगर यहाँ पे जीवन आज़ाद प्लान की बात करूँ तो मिनिमम अमाउंट जो एश्योर्ड का होगा वो होगा 2 लाख रुपए और जो मैक्सिमम होगा 5 लाख रुपए होगा। 3 लाख रुपए से नीचे के अमाउंट पे कोई भी मेडिकल चेकअप नहीं किया जाएगा, लेकिन 3 लाख से ऊपर होगा तो मेडिकल चेकअप होगा। ये जो परचेज किया जा सकता है पॉलिसी प्लान फॉर अ मिनिमम ऑफ 15 ईयर्स, इसको प्लान को परचेज किया जाता है एंड अ मैक्सिमम ऑफ 20 ईयर्स। द मिनिमम एज यहाँ पे जो रहेगी 90 साल के बच्चे को भी यहाँ पे आप एंट्री दे सकते हैं एंड अ मैक्सिमम एंट्री ईयर जो बैरियर रहेगा वो 50 साल रहेगा। तो 3 महीने से 50 साल के बच्चे यहाँ पर एनरोल हो सकते हैं।
ठीक, फिर इसी के साथ साथ LIC की अगर मैं बात करूं तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे, वो हैं मंगलम रामा सुब्रमण्यम कुमार जी, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, एंड हेडक्वार्टर रहेगा आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं पेटेल की। पेटेल ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ टू ऑफर लोन्स फॉर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। आई रिपीट, पेटेल कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड, पेटेल ने अभी पार्टनर किया है HDB फाइनेंशियल सर्विस के साथ टू प्रोवाइड लोन्स ऑन लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स सच एज बाइसिकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल डिवाइसेस, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड किचन एप्लीकेंट्स। यहाँ पे अगर हम बात करें लोन अमाउंट की, ये 5,000 से 3 लाख रुपए तक का वेरी कर सकता है, एंड ये प्रोवाइड करता है 24 मंथ की EMI ऑप्शंस कि आप 24 महीने में जो आपने लोन परचेज किया है 5,000 से 3 लाख रुपए तक का, वो आप EMI के तौर पे दे सकते हैं। Customers will benefit from the partnership by receiving instant digital finance for in-store purchase as well as the option to pay for the product in easy installments. It would also enable retailers in over 85,000 stores across India to create opportunities for cross-selling up and upselling their product. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के बारे में। ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी इंडिया में ये टॉप पर रहे, और ग्लोबली अगर हम बात करें तो इनकी सेकंड पोजीशन रही। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2022 और 2023, मुकेश अंबानी जो कि चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, ये नंबर 1 रैंक करते हैं इंडिया में, और ग्लोबली सेकेंड पोजीशन पे आते हैं विद ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स ऑफ 81.7। यहीं पे अगर मैं बात करूँ टॉप किसने किया तो वो रहेंगे जेनसेन ह्यूएंग। ये जेनसेन ह्यूएंग कौन है, ये प्रेसिडेंट है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ एनवीडिया। एनवीडिया काफ़ी बड़ी चिप मेकर ब्रांड कंपनी है, ठीक है, तो याद रखेंगे ये टॉप पोजीशन पे रहे थे। फिर सेकंड पोजीशन पे ग्लोबली आ जाते हैं मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। थर्ड पोजीशन पे आपके आ जाते हैं सत्य नडेला। थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं सत्य नडेला थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे सत्य नडेला जो हैं ये CEO हैं माइक्रोसॉफ्ट के। और फोर्थ पोजीशन पे आ जाते हैं आपके शांतनु नारायण जो कि एडोब के रहेंगे CEO। ऑलराइट, और गूगल के सुंदर पिचाई 5th पोजीशन पे। तो ये एक स्कोर, ये डाटा भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संदूक रूत जी की। संदूक रूत जी याद रखिएगा ये नेपाल के हैं और इनको अभी 5th लॉरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिन्होंने ISA जिसको ईजा अवार्ड बोला जाता है फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ठीक, ये टॉप सिविलियन अवार्ड है बहरीन का। और डॉक्टर संदूक रूत को जो कि नेपाली ऑफेंथोमोलॉजिस्ट हैं, इनको इससे सम्मानित किया गया। ऑफेंथोमोलॉजिस्ट क्या होता है, जो कि आपकी आई को ट्रीट करते हैं, ठीक है, आई के डॉक्टर आप समझ सकते हैं, उनको कहा जाता है। इनको डिक्लेयर किया गया 5th लॉरेट ऑफ 2122 ऑफ द ईसा अवार्ड फॉर हिज वर्क ऑन ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन एंड हिज सर्विस टू द कम्युनिटी एंड हिज अचीवमेंट्स। ये जो अवार्ड है इसमें $1 मिलियन का प्राइज होगा, अ सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट एंड अ गोल्डन मेडेलियन। ठीक, अगर यहीं पे मैं ईसा अवार्ड की बात करूं, ये अवार्ड दिया जाता है ईसा अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय हिज मैजेस्टी किंग हैमद बिन ईसा अल खलीफा, जो किंग है बहरीन के। हर 2 साल में एक एक्सपर्ट जूरी की टीम बैठती है, किसी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करती है फॉर दिस पर्टिकुलर अवार्ड। इस अवार्ड को 2013 से हर प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं GGIAL की। ये क्या है, सबसे पहले तो याद रखेंगे एक चीज कि जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना गोवा का, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है, न्यू गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी एयरपोर्ट को अभी बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर द एक्सीलेंट इनिशिएटिव्स टेकन बाय द GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ताकि जो सस्टेनेबल
गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी का फैक्टर जो हम ध्यान में रखते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही इसको बनाया गया है, इसीलिए इसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित करा गया। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था एट द एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसको एसोचम्स की 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कम अवार्ड थे फॉर सिविल एविएशन। ये होटल लीला में हुआ था, न्यू दिल्ली में। और GGIL रिसीव्ड द अवार्ड अंडर द एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट कैटेगरी। नेक्स्ट आ जाता है ESAF बैंक ने भी इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड को जीता फॉर 2022। आई रिपीट, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज वन द प्रेस्टिजियस इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 इन रिकॉग्निशन ऑफ इट्स कंट्रीब्यूशन टू एडवांसिंग द गोल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक, यहीं पे पॉल थॉमस की बात करें जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक के। इन्होंने रिसीव किया द अवार्ड फ्रॉम अनंथा नागेश्वरम जो कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं एट द 90th इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया समिट जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं EESL CEO विशाल कपूर अज्यूम द एडिशनल चार्ज एट द CEO ऑफ CESL। आई रिपीट, विशाल कपूर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, इन्होंने अज्यूम किया द चार्ज एडिशनल चार्ज ऑफ द CEO ऑफ कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड जो कि एक सब्सिडरी है स्टेट ऑन EESL की। ठीक, ही विल सक्सीड CESL MD एंड CEO महुआ आचार्य जी जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। नेक्स्ट, टाटा बोइंग एरोस्पेस डिलीवर द फर्स्ट फ्यूसलेज फॉर 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के द्वारा ऑर्डर दिया गया था और टाटा बोइंग एरोस्पेस ने डिलीवर कर दिया फॉर फर्स्ट फ्यूसलेज फॉर द 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर इसकी बात करें टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड की, ये एक जॉइंट वेंचर है आपका टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड का एंड बोइंग कंपनी का। और बोइंग कंपनी ने पहली बार बोइंग कंपनी ने डिलीवर कर दिया पहला फ्यूसलेज फॉर द 6 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा इनका ऑर्डर दिया गया था। अगर मैं बात करूं अपाचे हेलीकॉप्टर की, इट इज़ रिगार्डेड एज वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस एंड डेडलीस्ट अटैक हेलीकॉप्टर विद ओवर 1275 AH-64 अटैक ऑपरेशंस अपाचे ऑपरेशंस वर्ल्ड वाइड। ग्लोबली इन हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया जाता है टू एंड इन्होंने अभी तक अगर ओवरऑल देखें तो 4.9 मिलियन फ्लाइट आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसी में 1.3 मिलियन आवर्स का कॉम्पैक्ट टाइम भी ये पूरा कर चुके हैं। यहीं पे अगर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की मैं बात करूं, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ये एक प्राइवेट प्लेयर है इन द एरोस्पेस एंड डिफेंस सॉल्यूशंस इन इंडिया। ये एक फुल्ली ऑन्ड सब्सिडरी है टाटा सन्स की। यहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे वो कौन है? सुकारन सिंह। और ये कब फाउंड किया गया था? 2007 में इसको फाउंड किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट जो कि साइन किया बिटवीन UCSL, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज और 5 फिशरमैन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा। आई रिपीट, ये जो ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है ये साइन किया है UCLS किया है आपका उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ये आपका कर्नाटका में है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज केरला का एंड 5 फिशरमैन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ये भी केरला के हैं जिनके द्वारा ये बिल्ड किया गया एडवांस फिशिंग वेसल को। ठीक है, इन्होंने क्या कंस्ट्रक्ट किया और ये एडवांस फिशिंग वेसल क्या है? 10 इन्होंने डेवलप किया 10 डीप सी ट्यूना लॉन्ग लाइनर कम गिल नेटर फिशिंग वेसल को। आई रिपीट, 10 डीप सी टूना लॉन्ग लाइनर कम गिल नेटर फिशिंग वेसल्स को डेवलप किया और इन वेसल्स को डेवलप करने के लिए 14 करोड़ रुपए की लागत लगी। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और ये जो वेसल है ये 22.7 मीटर इन लेंथ, 6.4 मीटर इन ब्रेड्थ with a capacity of 12 persons and they can achieve a maximum of 8 knots. नेक्स्ट बात करते हैं IIT गुवाहाटी की। इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया एमट्रॉन के साथ एंड RCH के साथ टू फॉस्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। आई रिपीट, IIT गुवाहाटी
असम, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया एमट्रॉन के साथ, जो कि है असम इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड आरसी हॉबिटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ताकि इम्प्रूव किया जा सके एंड एडवांस ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है, ड्रोन्स को बढ़ावा देने की बेसिकली बात की गई और हम जानते हैं इंडिया को ही हम बोलना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। ठीक, ये जो मेंबर्स हैं ऑफ आईआईटी गुवाहाटी ड्रोन सेंटर एंड टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन हब, ये एक काफ़ी की रोल प्ले करेंगे इन दिस एफर्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द रीजन। दिस MOU विल ऑल्सो सपोर्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिसमें ड्रोन्स का यूज़ किया जाएगा वैरायटी ऑफ सर्विसेज के लिए। फिर आपका क्या होगा, जैसे मैपिंग के लिए आपका, अगर हम एग्रीकल्चर में बात करें तो पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए इरिगेशन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी काम आने वाला है। ठीक, ड्रोन्स का इन फ्यूचर इवन ड्रोन्स की वजह से आप देखेंगे जो पायलट की डिमांड है, जो पायलट्स जो ड्रोन को चलाएंगे उनकी डिमांड भी बढ़ेगी और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू प्लेट्यू हाउसिंग 76 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड श्रब्स डिस्कवर्ड इन महाराष्ट्र। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लेड किया गया डॉक्टर मंदार दातर जी के द्वारा, इन्होंने डिस्कवर किया एक रेयर लो ऑल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू हाउसिंग 76 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड सर्ब्स फ्रॉम 24 डिफरेंट फैमिलीज इन मंजारे विलेज, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन नॉर्थ वेस्टर्न घाट। ये रिसर्च पेपर अबाउट दिस प्लेट्यू वॉज पब्लिश्ड हेयर इन स्प्रिंग नेचर जर्नल नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस लेटर्स। और ये जो रीजन है इसको स्टडी किया जा रहा है बाय ARI इन पुणे महाराष्ट्र। ये द डिस्कवर्ड प्लेट्यू कैन प्रूव टू बी अ रेपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर स्पीशीज इंटरेक्शंस एंड ये हेल्प करेगा हमें स्टडी करने में टू फाइंड द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का जो हमारे स्पीशीज पे इफेक्ट होता है वो क्या इफेक्ट होता है, कैसे सर्वाइव करती हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, उन सारी चीज़ों का हमें यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा आफ्टर द रिसर्च। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑबिट्री। ज्ञानपीठ विनिंग असमीज पोएट नीलमणि फुकन, इनका रिसेंटली निधन हो गया। नीलमणि फुकन ये क्या है, असमीज पोएट है। सबसे पहली चीज़ तो ये याद रखेंगे, इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 89। 1933 में इनका जन्म हुआ था डेरेगांव असम में। और नीलमणि फुकन इन्होंने अपने करियर स्टार्ट किया था एज अ लेक्चरर इन 1964 एट आर्य विद्यापीठ कॉलेज जो कि गुवाहाटी में है, और इन्होंने रिटायरमेंट तक 1992 तक यहीं पे काम किया। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें, इनको असम वैली लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1997 में। 1981 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया इन असमीज फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन कविता। 1990 में इनको पद्माश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, उससे सम्मानित किया गया था। फिर 1998 में इनको एमर्चियस फेलो से सम्मानित किया गया फॉर अ 2-year टर्म। इसी के साथ साथ 2002 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप से भी इन्होंने रिसीव किया, इन्होंने, जो कि एक हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है इंडिया में, साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जाता है। इसी के साथ साथ फिर 2020 में इनको 56वें ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है। और ये तीसरे रेसिपिटेंट थे फ्रॉम असम आफ्टर बीरेंद्र कुमार भट्टाचार्य एंड ममोनी रायस्वामी गोस्वामी जी, जिनको ये अवार्ड से सम्मानित, ये ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एप्पल क्लस्टर डेवलप करने की बात की गई बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ये एप्पल क्लस्टर कहाँ डेवलप करने की बात की गई, इन द शोपियन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अंडर द क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक, यहीं पर आप ध्यान रखेंगे क्या होगा कि इंडिया दिस अप्रूवल वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग अ डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस ऑन द इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव, जो कि ऑर्गेनाइज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा अलॉन्ग विद PhD चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट। कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। जो ये एप्पल क्लस्टर है शोपियन इन्वेजन का, द डेवलपमेंट ऑफ द शोपियन एप्पल ऑन 3 वर्टिकल्स इंक्लूडिंग कि प्री प्रोडक्शन की बात की जाएगी, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन एंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग टू मेक इट ग्लोबली कम्पिटिटिव। अब देखो एप्पल क्लस्टर बना के बेसिकली क्या होगा, हम जानते हैं कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में अच्छी फसल होती है एप्पल की, तो उसको हम एक कैसे एक सूटेबल और बेटर बिजनेस को डेवलप करके, मतलब वेरियस टेक्निक्स निकालना कि हम कैसे उसको एक सस्टेनेबल मेथड बना सकें
एंड कैसे उसको आगे लोगों की मदद से बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं एंड इवन एक्सपोर्ट कर पाए हम अपने एप्पल्स को ऑल अराउंड द वर्ल्ड मार्केट करके। अभी अगर आपने देखा हो पीयूष गोयल जी मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट कर रहे थे ब्रुसेल्स बेल्जियम में। सोल रीज़न क्या था कि जो मैंगोज़ की क्वालिटी है इंडिया में, जो भी यहाँ पे अलग अलग तरीके के मैंगो मिलते हैं उनको इंटरनेशनल मार्केट में प्रमोट करने की यहाँ पे बात की गई। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। IPN RIS इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू सेटअप सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी एंड कनेक्टिविटी। साइक्लोन 1 ये एक्सरसाइज थी, पहले एडिशन इनॉग्रल एक्सरसाइज थी इंडिया और इजिप्ट के बीच में, राजस्थान में हुई। IRADA एंड MNRE इनके बीच में एक MOU साइन हुआ फॉर सेटिंग परफॉर्मेंस टारगेट फॉर 22-23। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्विच किया बॉन्ड्स मैच्योरिंग इन 2024 विद RBI इन कैश न्यूट्रल डील। 3 टेकअवेज आप RBI की रिपोर्ट से देख सकते हैं ऑन स्टेट गवर्नमेंट बजट्स। LIC ने लॉन्च किया गारंटेड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस प्लान जीवन आज़ाद। पेटेल इन्होंने पार्टनर किया HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ टू ऑफर लोन्स फॉर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2023 की बात करें तो अंबानी ने टॉप किया अमंग 2 इंडियंस एंड सेकंड ग्लोबली। बहरेन ईसा अवार्ड फॉर सर्विस टू ह्यूमैनिटी 2023 की बात करें तो डॉक्टर संदूक रुएट ऑफ नेपाल इनको डिक्लेयर किया गया एज द 5th लॉरेट। GGIAL ये नया गोवा मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ESAF बैंक ने बैक किया इंक्लूसिव फाइनेंस इंडिया अवार्ड 2022 को। EESL CEO विशाल कपूर ने अज्यूम किया एडिशनल चार्ज एज द CEO ऑफ CESL। टाटा बोइंग एरोस्पेस ने डिलीवर किया पहला फ्यूसलेज फॉर द 6 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर्स टू इंडियन आर्मी। ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट की बात करें, ये साइन किया गया था बिटवीन UCLS, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड 5 फिशरमैन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बिल्ड एडवांस फिशिंग वेसल। IIT गुवाहाटी ने साइन किया एक MOU विद एमट्रॉन एंड RCH टू फॉस्टर ड्रोन टेक्नोलॉजी इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नया प्लेटू हाउसिंग की बात करें, एक नया प्लेटू मिला जहां पे 76 स्पीशीज हमें देखने को मिली इन महाराष्ट्र। ज्ञानपीठ अवार्ड ज्ञानपीठ विनिंग असमी पोएट नीलमणि फूकन इनका रिसेंटली निधन हो गया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा अप्रूव किया गया अ क्लस्टर एप्पल क्लस्टर इन जम्मू एंड कश्मीर शोपियान डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों ये तो थे हमारे करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं होमवर्क पर। पहला थीम बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की मीटिंग की थीम भी बताओ और लोकेशन भी बताओ कहाँ पर हुई। सेकंड, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। थर्ड, वरुणा ये एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। फोर्थ, किस स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया साइबर कांग्रेस इनिशिएटिव। फिफ्थ, FPGA विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली ये एसोसिएटेड है किस इंडस्ट्री के साथ। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। अब आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके हमें बताना है आपके क्या व्यूज़ हैं ऐसे सेशन पे, क्या आप चाहते हैं हम फ्यूचर में भी ये सेशन लाते रहें, और अगर चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.